Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter first, brick, beats and bone. Dear student, as you know that we are revising your chapter, and I think you are all have watched my all previous classes. You have a lot of materials for study this chapter. आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तमाम सारे मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल हैं. हमने पुरानी क्लासेस में इस बारे में तमाम सारी बातें की. फिर भी आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड के बारे में बात करेंगे. ट्रेड इज आल्सो द पोर्शन ऑफ इंडस इकोनॉमी. As you know that in the previous classes I have discussed about that the main elements of the Indus economy, that was first agriculture, second pastoralism and third that was trade. We had discussed, we studied on the other 2 points, the agriculture and the pastoralism. Today we will focus the trade. As you know that the trade that was in developed form, Indus Valley civilization called the trade based economy. The urban civilization. Why? Because a lot of archaeological finding remains which was collected by the archaeologist that proved that Indus Valley civilizations people they were aware of the making of the industrial goods and the luxurious lives. What things? एक luxurious life के लिए जो जरूरतें होती हैं उन चीजों को बनाने की कला सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के अंदर थी. एक ग्लैमरस जीवन वहां के टाउन प्लानिंग में दिखाई देता है. Chanudro, that was the place where the lipstick was found. The copper mirror that was also found in the burials. It was buried with the dead. What it proved? It means the supernatural power. It means their their funnel system also. In my last class, I discussed about that, the importance of the burials and the goods which was collected from their graves. So leave this matter, dear student. We will try to focus the external trade and internal trade. External trade. When I am telling external trade, you have to understand that the meaning of the foreign trade. Foreign trade. And internal trade, it means this is the local trade. Local trade. From village to town, town to city. कहाँ से? ये local trade कहाँ से थी? कहता है from village to town and town to city. You may ask a question, and sir, how can you say that the village and towns, they were in the Indus Valley civilizations? If Indus Valley civilization was the urban civilization, it was urbanized, then how can you say the existence of village? Of course you are right. You can ask me. But we have the clear evidence. The Mehergarh, Amri, Kortiji, Chanudro, Kalibanga, these were the sites where you found the premature sites of the Indus Valley civilization, premature Indus, and then after mature Indus, and after the later Indus sites. If you will see the different goods which is mentioned in your book in pig farm, on the basis of that you can say, you can really understand. आप समझ सकते हैं उसके आधार पे कि रॉ मटेरियल्स का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस था. रॉ मटेरियल्स दैट कम फ्रॉम द विलेज एंड इट वाज व्हाट? इट वाज यूज्ड बाय द आर्टिसियन हु लिव्ड इन सिटी. विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स, आर्टिसियन प्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शंस, प्रोडक्टिव गुड्स. वो चीजें क्या क्या होती थी? मैंने आपसे कहा था, विद द हेल्प ऑफ स्टेटाइट्स, with the help of carnelian, with the help of the chert and jaspers, with the help of copper, bronze, gold, silver, they made the different type of
थिंग्स, कौन कौन सी वस्तुएं आपके बुक पे आप क्लियरली मेंशन है, एक पिक जो एक वीमेंस की क्या है, गार्लैंड्स है, माला है. So it is a very interesting matter with the Indus Valley civilizations peoples that they connected with the different foreign countries like Mesopotamia, like Iraq, Iran with Persia, Ur, Kish, Tipper, Greek, Egypt, a lot of countries. They connected with each other. I am not saying on the basis of textual evidence. I am saying on the basis of the archaeological evidence. The Indus goods that was excavated particular that places. So that's why I am saying कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का व्यापार एक्सटर्नल जो ट्रेड था वो उन देशों के साथ था. In the Harappan civilization, the elaborate the social structure and the standard of living must have been achieved the highly developed system of the communication and storage economy. इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्पेसिफिक क्वालिटी थी the communication and a strong economy. In this intensive agricultural production and the large scale trade play the significant roles. In the beginning, trade must have been the internal between the zone and another, and later external trade also developed. Agricultural produce, industrial raw materials like copper, ores, stone, semi-precious sales, etc. were traded. Besides the raw materials, the finished product of the metals, parts and the pans, weapon, etc., precious and the semi-precious stones, beads, pendants, amulet, etc. This was collected from the different regions. अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग क्षेत्रों से ये वस्तुएं मंगाई जाती थी. इनका अपना एक अलग मीनिंग्स था. आप इन आधार पे my dear student, the precious metal or semi-precious stone that was collected from the different regions, that is what कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो आज भी हमारे पास एविडेंस के रूप में हैं, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग तमाम सारी चीज़ों को अपने क्षेत्रों से मंगाते रहे होंगे. द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स लाइक कॉपर, ओर, स्टोन, सेमी प्रीसियस सेल were traded. If you have remember my previous class where I shown a chart, on the basis of that I want to understood you that कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से मंगाई जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में. कहता है कि कॉपर may have been produced from Khetri mines of Rajasthan, chart blades from Rohari hills of Sindh, carnelian beds from Gujarat and Sindh, and the lead from South India, lapis lazuli from Kashmir and Afghanistan, and the other such type of things that come from the other regions. What I am telling you, which type of regions? कहता है कि जो टर्क्वाइज है एंड जेड है, जेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया और ईरान, द एमेथिस्ट फ्रॉम द महाराष्ट्र एंड अगेट, चाल्सडेनी एंड कार्नेलियन फ्रॉम द सौराष्ट्र. द occurrence of mature Harappa seals and other artifacts in the contemporary Mesopotamian civilization and some of the Mesopotamia and Egyptian objects in Harappan civilization
and the evidence of Mesopotamia documents established that the Harappan had a trading relationship with that land. तो इन चीज़ों के आधार पे अब अगर एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँ, लिखूँ, बताऊँ तो कौन कौन से प्लेस कहाँ कहाँ से हैं, आइए देख लेते हैं. लेट अस कम एंड दिस कहता है कि कौन कौन से फूड्स प्रीशियस मेटल में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल थिंग्स, gold and silver. It was traded from the various regions. Various regions meanings Iran, Rajasthan and South India. Okay, second things, now precious and semi-precious stone. Semi-precious stone, precious and stones that were traded from, कहाँ से? कहता है कि ये भी अलग अलग स्थानों से, लाइक सिंध, बलूचिस्तान एंड कश्मीर. थर्ड, कॉपर, राजस्थान, खेतरी, लेड, राजस्थान एंड ईरान, ब्लैक, वुड और फर्नीचर्स, कहता है कि कहां से? कश्मीर and other things, short blades from Rohri, short blades from Rohri. Then after other things, Rohri Hill option, then after late Rajasthan, Iran, Afghanistan, jade from Central area, jade from Central Asia, carnelian from Saurashtra, carnelian from Saurashtra,
Saurashtra and Sales Balakot and Ganeshwar except it the other important places where we I mean to say the Indus Valley civilization connected. इनके अलावा भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और अन्य जगहों से कनेक्टेड थे लाइक वेयर इजिप्ट मेसोपोटामिया इजिप्ट the different Mesopotamian city also like Ur, Uruk, Sumer, Babylonia, etc. Iran, Oman, ओमान इसको मगन कहते हैं ये कॉपर मगन से ही मंगाए जाते थे इट मीन्स ओमान थे आपके बुक में ओमानी कॉपर ओमानी जार के पिक दिए गए कहते हैं मगन और दिलमुन एक और प्लेस दिलमुन ओमान दो प्लेसेस के बीच ये दोनों मीडिएटर का काम करते थे व्यापारिक अवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता के दिलमुन और ओमान एक बिचौलिए का काम करने वाला पोर्ट था जो बाहर के देशों में व्यापार किया जाता था तो my dear student, if you will observe that places and the goods which export or import from external to internal and internal to external, that things carnelian that come from Saurashtra, gold and silver that come from the various regions like Iran, Rajasthan, southern India, Afghanistan also, the precious and the semi-precious stone that came from Sindh, Baluchistan and Kashmir, copper, Rajasthan, Khetri and the Omanian jar that made from copper, ये ओमान से मिला हुआ जार भी महत्वपूर्ण था. Then after lead, Rajasthan, Iran, Afghanistan, blackwood, अब precious जो furnitures थे, Kashmir, cured blade from Rohri's hill of Sindh, jade, Central Asia, सेल बालाकोट एंड गणेश्वर. तो इस आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड दैट वाज वाइड स्प्रेड. इट वाज स्प्रेड थ्रू होल सेंट्रल एशिया फ्रॉम इंडिया. भारत से लेकर के पूरे एशिया में ये फैले हुआ था और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट भी इससे अछूता नहीं था. एक बड़े क्षेत्र पे इस ट्रेड का व्यापार किया जाता था. वेट एंड मेजरमेंट, एज आई इन्फॉर्म यू इन माई प्रीवियस क्लासेस दैट वेट एंड मेजरमेंट पे हमने बात की थी और हमने कहा था कि वेट एंड मेजरमेंट के लिए उनके पास क्या थी, द ट्रेड बोथ लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट डिस्टेंस implies a regulation of the exchange and weight and measurement. The Harappan weight and measurement were cubical and spherical in shape and were made charred, jasper, agate. The weight proceeded in a series, first bonding from 1, 2, 4, 8 to 64, then going to 160, and from then 1 in the decimal multiplies of 16, 320, 64, 640, 1600, 6400 and 1600 into 4, 8000 and such type of others.
Interestingly, the tradition of 16 or its multiplies continued in India till 1950s. 16 Chatak made a Ser and 16 Anas made 1 rupees. The measure of length was based upon a foot of 37.6 centimeter and a cubit of 51.8 to 53.6 centimeter. It is very strange matter with you, my dear student. I have already informed you that the various symbol, various things which was used by the Indus people, it was also practiced nowadays. During 1950s, the 16, that was the very important things. आपने सुना होगा, आपने अपने ग्रैंडफा या ग्रैंड मदर से बात सुनी होगी कि 16 आने दे दीजिए, 16 छटाक दे दीजिए. और ये 16 का जो गुणित अनुपात में जो शेप था, जो एक मेजरमेंट था, वो आज भी किन्हीं न किन्हीं रूप में चला आ रहा है. ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से करीब 5000 साल पहले की सभ्यता, और उससे वो चीजें आज भी किसी न किसी रूप में है. फाइनेस्ट एग्जाम्पल विच वी हैव दैट इज दैट सिंबल. हम आज भी किसी को बाहर से आने वाले को कैसे कहते हैं? प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ के. दैट सिंबल आल्सो केम फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन. स्वास्तिक that indicate the sun worship also came from the Indus Valley civilization. The various seals that was mentioned, that particular things. तो ये सारी चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें दिखाई देती हैं. कल हमने ट्रांसपोर्टेशन पे बात की. ट्रेड पे बात करते समय ट्रांसपोर्टेशन पे बात करना जरूरी होता है. अगेन आई रिपीट द टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांसपोर्टेशन में दो चीजें थी. The cheapest mode of transportation, that was sea route, but the land route was also available. I show you two peak. First peak, that was the bullock cart, it was excavated from the Mohenjo-daro, and second peak, that was a seal on which the boat that was mentioned, that was what picturized on seal, a cylindrical seal that was found from Lothal, where the बोट पिक्चर वाज पिक्चराइज ऑन देम. उस पे बनाया गया है बोट की आकृति. और दो चीजें इसके एक्सेप्टेड इफ यू विल माइन्यूटली ऑब्जर्व अबाउट द कंडीशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेयर यू हैव फाइंड आउट दैट द मेनी मोर साइट्स दे वर सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक आर द सी शोर. इट गिव्स द वेल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बाय द थ्रू द रिवर रूट्स. दे कनेक्टेड विद द सी लोथल, that connected with the Bhogwa river from sea to port, and the different sites like Mohenjo-daro, Mohenjo-daro, Indus, Harappa, Ravi, Lothal, Bhogwa, Kalibanga, Ghaggar, Alamgirpur, Hindan, Sutka Gendor, Das, Manda, Chenab, a lot of Bhagatrao also, Daimabad, Dabar, a lot of sites. Whatever you know, whatever site name came into your mind, if you will minutely observe, you will find that site situated in the river bank or the seashore. समुद्र के किनारे वो स्थित है या वो नदियों के किनारे स्थित है. तो ये दोनों चीजें क्या देती हैं? एक फाइनेस्ट चीज देती हैं, वो बताती हैं कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इस रूट से अवेलेबल रही होगी. So that's why they connected from the different foreign places like Oman, like Dilmun, like Mesopotamia, like Egypt. The Egyptian mummy, I mean to say that a mummy that was excavated in the Indus Valley civilization, Harappan sites. What it proved? It means the Egyptian traders, they reached or they came from their country to Mohenjo-daro. Mohenjo-daro, that word Meluha, the specific word used in the what? The Mesopotamian scripts. Meluha शब्द का यूज आता है. और यहाँ पे ये लोग मीन्स इजिप्ट से आने वाले कोई व्यापारी भारत आया होगा और यहीं पे उसकी मृत्यु हो गई होगी और उसकी डेड बॉडी को ठीक वैसे ही कफन में डाल के बरीड किया गया था जैसे मिस्र में किया गया. डेड बॉडी के ऊपर पूरे लेप लगा करके पट्टियों से लपेट के कफन में डाल के
और फिर उन्हें दफन किया गया। माउंट एफ, दिस इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल। यू कैन, इफ यू विल सर्च आउट दैट पॉइंट्स, यू विल फाइंड। सो माय डियर स्टूडेंट, द ट्रेड, आई होप आप ट्रेड को समझिए, इसको इस आधार पे समझ लिए होंगे। एक्सेप्ट इट, और भी आसान शब्दों में अगर इसको समझना है आपको, तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग आपस में म्यूचुअल बॉन्डिंग ट्रेड के माध्यम से कनेक्टेड थे। कौन कौन से अदर पॉइंट्स यू कैन इंक्लूड इन आंसर, कैसे और इन पॉइंट्स को आप जोड़ सकते हैं। सिंध और मेसोपोटामिया, इंडस एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बीच जो व्यापारिक क्रियाकलाप थे, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज थी, ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी, ये दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। हम इनको जानने के लिए हमें दो आधार पे, एक आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स और एक इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। ऑन द बेसिस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स वी कैन एक्सप्लेन द ट्रेड बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच, बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, एक मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच के जो व्यापार होते थे उनको हम किस आधार पर जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें दो चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। वी हैव टू बेस आवर स्टडी ऑन द टू एविडेंसेस, फर्स्ट द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड सेकेंड द इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। तो अगर इन चीजों के आधार पे हम बात करें, इंस्क्रिप्शनल एविडेंस पे और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स पे, तो हमारे पास पर्याप्त सामग्री मिल जाएगी। अगर देखें तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता से एक्सपोर्ट की जाने वाली जो सामग्री थी, जो वस्तुएं थी, वो क्या क्या थी? कॉटन थी, कॉटन के क्लॉथ्स थे, इमारती लकड़ी, फर्नीचर्स, स्पाइसेस, मसाले, टस्क के गुड्स, हाथी दांत के बने हुए जो आर्टिसन के द्वारा बनाए गए थे, शेप दिया गया, वो रहे होंगे। और फिर पशु पक्षी, द ह्यूज अमाउंट ऑफ द न्यूमरस टाइप ऑफ द बर्ड्स दैट वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू मेसोपोटामिया। भारत से बड़े पैमाने पर पशु पक्षी भी ट्रांसपोर्ट या क्या भेजे जाते थे। दे वर ट्रेडेड। द इंडियन बर्ड्स लाइक वेरी मच इन मेसोपोटामिया, सो दैट्स व्हाई द डिमांड ऑफ द बर्ड्स इज द what? High level. So what I am telling you, that if you will minutely observe about the things like the cotton cloths, second like the tusk thing, goods like spices, and thereafter I am telling the birds, पक्षी, हाथी के दांत की बनी वस्तुएं, लक्ष्मी की आकृति, लक्ष्मी का एक छोटी सी प्रतिमा मिली, गॉडेस लक्ष्मी की, जो हाथी के दांत की बनी हुई है, मेसोपोटामियन साइड से। कॉटन मिला इंडस की, मेसोपोटामिया से। तमाम सारे भारतीय पक्षियों के सिंबॉलिक रूप में जो उनके मेसोपोटामियन सील है उस पर दिखाया गया है। इट मीन्स दे वर अवेयर ऑफ द इंडियन बर्ड्स। हाउ कैन दे अवेयर? नो डाउट टू से दैट वर ट्रेडेड फ्रॉम इंडिया टू मेसोपोटामिया, सो दैट्स व्हाई दे नो अबाउट देम। दैट्स व्हाई द व्हाट, जो वहां के पेंटर्स रहे होंगे, जो वहाँ के चित्रकार रहे होंगे, जो वहाँ के डिसेंस रहे होंगे, उन लोगों ने इनका निर्माण उस पर किया होगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स माय डियर स्टूडेंट। अब इसके अलावा उर, किस, लगस, निप्पर, टेलस्मर, टेपे गावरा, हमा, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के वो नगर हैं जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के व्हाट डोजन सील्स मिले, सील मिले वहां पे। और इन सील के आधार पे भी इन नगरों में इन टेल अस्मर, टेल गावरा, लगस, कीस, उर से आप कनेक्ट कर सकते हैं ये मोहरे कैसे पहुंचे होंगे। नो डाउट टू से दैट ट्रेड के माध्यम से वहां पहुंचे होंगे, व्यापार के थ्रू वहां पहुंचे होंगे। विदेशों के साथ सिंधु सभ्यता के नगरों के व्यापारिक संबंध के परिणाम स्वरूप सिंधु सभ्यता के जो सिटी थे वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में थे। यहाँ व्यापारियों का जो डेवलपमेंट था वो एक यूनिक तरीके का था। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू दैट
If you have remembered the administration of Indus Valley Civilization, which I taught you, that I told you that Indus Valley Civilization was controlled by the Council of the Traders. Why I am saying? Because on that things which was transported, which was traded from Indus Valley Civilization to other state, it was the proper, what? Organized form. Having seen the standardization of that things, we can say that the central authorities would be in Indus Valley Civilization. एक रहा होगा. तो यहाँ पे एक आपको पूरा सेप दिखा, पूरा डेवलपमेंट दिखा, पूरी विकास क्रम दिखी आपको. तभी मैंने आपसे कहा था कि आर.एस. शर्मा कहते हैं कि आर.एस. शर्मा वाज द ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ इंडिया. ही given the statement that Indus Valley Civilization was controlled by the traders, Council of Traders. The Vanik and Mortimer Wheeler also claim कि कौन बनाया होगा इसको. कहते हैं कि इनको बनाने वाला काम जो किया होगा वो कौन था, ये यहीं के लोग थे. ये व्यापारियों का वर्ग रहा होगा. मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता के जो नगरों के द्वारा आयात की जाने वाली जो वस्तुएं थी, मेसोपोटामिया से क्या आई मोहनजोदड़ो में, कौन कौन सी चीजें थी. अभी तो हमने सिर्फ एक तरफ की बातें की. मेसोपोटामिया से जो मोहनजोदड़ो में आई वो थी हरिताभ रंग की क्लोराइड प्रस्तर का टुकड़ा, पत्थर का एक स्टोन पार्ट, जिस पर चटाई की बुनावट जैसी डिजाइन बनी हुई है. हड़प्पा से जो खानेदार मनके मिले हैं वो मेसोपोटामिया समूह आयात किए गए होंगे. ये व्यापारिक क्रियाओं के फलस्वरूप सिंधु सभ्यता तक पहुंची होगी. मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध के उल्लेखित साक्ष्य का उल्लेख सुमेरिया के शासन सारगोन 2371 to 2316 जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है. सारगोन इस काल में मिट्टी से एक पट्टिका मिली, एक प्लेट मिला, दैट वॉज मेड फ्रॉम द मड, मिट्टी से बनी. सारगोन कब का? 2371 से 2316 के बीच, बीसी के बीच. और इनके आधार पे आप मेसोपोटामिया के ऊर के साथ साथ अन्य नगर में व्यापारी दिलमुन और मगन, मेलुहा आदि नगरों से व्यापार करते थे. इसकी पूरे एविडेंसेस है हमारे पास. तो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू. My dear student, these are the points, these are the factors. On the basis of that, you can explain the trade of Indus Valley Civilization. दिलमुन और जो मगन थे, दिलमुन और मगन, मेलुहा की निश्चित पहचान करना यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है. आर्कियोलॉजिस्ट मेलुहा से इंडस वैली सिविलाइजेशन को जोड़ते हैं, दिलमुन को बहरीन से जोड़ते हैं और मगन को ओमान कहते हैं. ओमानी जार आल्सो फाउंड इन इंडस साइट्स. ये ओमानी जार में क्या आता था ये क्लियर नहीं है. इतिहासकार मानते हैं कि इसमें कोई लिक्विड चीजें आती रही होंगी. मे बी पॉसिबल है वाइन, मे बी पॉसिबल है कि कुछ और ओलिव ऑयल्स भी हो सकते हैं. बट क्या था, वी हैव नो क्लियर एविडेंस. हमारे पास कुछ भी क्लियर ठीक से कह पाना मुश्किल है.